Hello students, welcome to G3 online classes. In the last video, we discussed two methods of calculating interest on drawings, that is simple method and product method. That is, with the help of these two methods, we can calculate interest on drawings. There is another method which is a shortcut method which can be applied to calculate interest on drawings. Interest on monthly drawings basically. So first of all, let us discuss interest on monthly drawings. That means where we can apply this method. In simple and product method, we studied that if different amounts are withdrawn in different months, then we have to calculate that interest on each and every amount, right? Or we have to take the product of that. Rather than applying these two methods, we can apply this shortcut method also for calculating interest on drawings. But this method can be applied only when two conditions are satisfied. So first of all, let us discuss these two conditions which have to be fulfilled to apply this method. So let me tell you those two conditions. The first condition is that the partner has withdrawn the amount at every month. That means drawings are made continuously. Continuously means it can be made for continuously 3 months, continuously 9 months, continuously 6 months, or continuously 12 months. That means there should not be any gap in between the drawings. As for example, the partner has withdrawn the amount in the month of April, May, June, July. So this method can be applied. If the partner has withdrawn the amount in the month of April, in the month of May, June he has skipped, July, August, September, October, November, up to November he has withdrawn the amount, but he has skipped 1 month, then this method cannot be applied. That means if the partner has withdrawn the amount continuously for some fixed months, whether it can be for 3 months also, it can be for 6 months also, it can be for 9 months, and it can be for 12 months also. So the first condition that has to be fulfilled is that the amount is withdrawn at every month. Right? This is the first condition. Second condition is that at every month the amount withdrawn should be equal. That means, first of all, let me give you an example. A partner has withdrawn the amount in the month of April, May and June. And in every month and for the 3 months he has withdrawn 3,000 amount. That means in the month of April also he has withdrawn 3,000, May also he has withdrawn 3,000, and in June also he has withdrawn 3,000. That means the same amount has been withdrawn in the different months and continuously withdrawn. Then if these two conditions are satisfied, only then this method can be applied, right? So first of all, these two conditions must be satisfied for applying this method. First condition is that drawings are made continuously at every month, right? It can be for 2 months also. So rather than calculating interest on drawings on different amount at every month, we can apply this shortcut method. But for that, the drawings should be made regularly at every month, and the amount should also be the same. It should not be that in the month of April he has withdrawn 3,000, May 4,000, June 3,000, next 3,000, 3,000. No. If the amount has changed, then this method cannot be applied. If the amount has changed or if any particular month has been skipped, then this method cannot be applied. Right? So first of all, make it clear that these two conditions are satisfied for applying this method. Now, after discussing these two conditions, there can be 3 methods. That means drawings are made at every month, but drawings can be made at the beginning, at the middle और at the end. होगा यही, या तो ड्राइंग्स जो करी होंगी वो हर महीने के बिगनिंग में करी होंगी, या मिड में करी होगी, या हर महीने के लास्ट में करी होगी. ये 3 केसेस हमारे हो सकते हैं. तो हर केस में हमें जो एवरेज पीरियड लेके चलना है, दैट विल बी योर डिफरेंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट अस डिस्कस व्हेन सेम अमाउंट इज विड्रॉन continuously at every month in the beginning of every month. That means beginning में उसने withdraw करा है 1st अप्रैल को या 2nd अप्रैल को या 3rd अप्रैल को उसने withdrawings करी है. हर महीने के beginning में उसने drawings करी है, right? So what we have to do is average period. हर मेथड में, चाहे वो आप बिगिनिंग में कैलकुलेट कर रहे हो, एंड में कैलकुलेट कर रहे हो या मिड में कैलकुलेट कर रहे हो, एक फॉर्मूला आपको लेके चलना है. फॉर्मूला विल बी एवरेज पीरियड विल बी टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग डिवाइडेड बाय 2. टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग का मतलब है, एज फॉर एग्जाम्पल आपने
मैं सिंपल केस में यहाँ पे लेके चलती हूँ। अगर हमने 12 मंथ्स विड्रॉइंग करी है, हर महीने के शुरू में 12 महीने के लिए हमने ड्राइंग्स करी हैं। सिंपल एग्जांपल मैं आपको कोट कर रही हूँ ताकि ये फॉर्मूले को एक्सप्लेन कर सकूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली ड्राइंग उसने कब करी होगी? 1 अप्रैल को। तो पहला क्या है हमारा? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। 1 अप्रैल के बाद आपका कितना टाइम बचता है? 12 मंथ्स, राइट। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक 12 मंथ्स बनते हैं। फर्स्ट ड्राइंग के बाद आपका कितना टाइम पीरियड बनता है? 12 मंथ्स। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग आपने कब करी होगी? 1 मार्च को करी होगी। तो 1 मार्च को हमारा कितना टाइम पीरियड बचेगा? 1 महीना, क्योंकि हमने कितने मंथ्स के लिए करा है? पूरे साल के लिए, 12 मंथ्स के लिए। तो लास्ट में 1 मार्च को हमने करा होगा, तो मार्च में हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो क्लोज हो जाएगा। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग हमारा कितना होगा? 1 मंथ। तो 12 टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग हमारा 12 मंथ्स और आफ्टर लास्ट ड्राइंग हमारा 1 मंथ डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा आपका 6.5 मंथ्स जो है एवरेज पीरियड हम यहाँ पे लेके चलते हैं टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर मंथली बेसिस पर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर रहे हैं, सो देन वी हैव टू टेक 6.5 मंथ्स एज एवरेज पीरियड, राइट। For that, 2 conditions I have already discussed, that amount of drawings should be equal and the time gap between drawings is equal. That means कोई गैप आपका नहीं होना चाहिए। हर गैप में कितना है हमारा? कितने महीने का गैप है? कॉन्टिन्यूस है हमारा, एक महीने का, राइट। दैट मीन्स इस पॉइंट का मतलब है दैट देयर शुड नॉट बी एनी गैप between the drawings. Drawings are made continuously. So this was what? When drawings are made at the beginning of every month and when the drawings are made for 12 months, then the average period आपका कितना होगा? 6.5 months. आप इसको 6.5 months आप इसको क्रैम भी कर सकते हो, या फिर अगर बेटर है इस फॉर्मूले के थ्रू अगर आप करोगे तो चाहे आपका 3 मंथ्स का आए, चाहे आपका 9 मंथ्स का आए या 6 मंथ्स का आए, आप हर मेथड में अपना ये फॉर्मूला लगा के आप कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको क्रैम करते हो तो बहुत सारे जो एवरेज पीरियड है आपको डिफरेंट जो है वो क्रैम करने पड़ेंगे। So on the basis of this formula you can calculate this average period. Now let us discuss the second case when drawings are made at the end of every month. जब हर महीने के लास्ट में हम ड्राइंग्स करते हैं, फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, दैट इज एवरेज पीरियड विल बी टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। एवरेज निकालते हैं तो हमेशा डिवाइड किससे करते हैं? हम 2 से करते हैं। अब डिस्कस करते हैं जब हमने ड्राइंग्स करी है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ तो हम किस तरह से करेंगे। आप यहाँ पे कैलकुलेट करें टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग इसका मतलब हमने कब करी होगी? एंड ऑफ एवरी मंथ। दैट इज अगर अप्रैल से शुरू करी है हमने तो 30 अप्रैल को हमने ड्राइंग करी होगी, 30 अप्रैल को ड्राइंग करी होगी। 30 अप्रैल के बाद आपके कितने मंथ्स बनते हैं? अप्रैल तो गया आपका, क्योंकि वो महीना क्या है आपका खत्म हो गया, 30 अप्रैल है, वो हट गया आपका। बाकी कितने मंथ्स बच गए हमारे? 12 - 1। 12 मंथ्स में से एक महीना हमारा हटा दिया तो कितने बच गए? 11 मंथ्स। अच्छा, अब करते हैं टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। सबसे लास्ट ड्राइंग आपने कब करी होगी? यहाँ पे 31 मार्च को करी होगी। अब 31 मार्च को हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया है तो हमारे पास कोई भी मंथ्स यहाँ पर लास्ट ड्राइंग के बाद नहीं बचे हैं। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग हमारा कितना होगा? 0 मंथ, क्योंकि लास्ट ड्राइंग हमने कब करी है? 31 मार्च। तो एवरेज पीरियड हमारा कैसे आएगा? 11 मंथ्स प्लस 0 मंथ्स डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 5.5 मंथ्स, राइट। सो एवरेज पीरियड विच विल बी टेकन when drawings are made at the end of every month, that will be your 5.5 months, right? And the same will be the case. Third case will be when drawings are made in the middle of any month. अगर आप मिड में करते हो तो एवरेज पीरियड हमारा यहाँ पर कितना आएगा? 6 मंथ्स आएगा। सेम उसी एवरेज पीरियड के फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हो, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ, अगर हमने मिड में करी है तो फर्स्ट ड्राइंग हमने कब करी होगी? 15 अप्रैल, राइट। 15 अप्रैल के बाद आपका कितना टाइम पीरियड बनेगा? 11 मंथ्स तो हमारे वो हो गए और 15 डेज हमारे ये हो गए, तो कितना होगा आपका? 11.5, राइट, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग हमने कब करी होगी? जब हम मिड में कर रहे हैं, 15 मार्च, राइट। तो 15 मार्च के बाद हमारे कितने बचेंगे? 15 डेज बचेंगे। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? 0.5। 1 हम नहीं कह सकते, पूरा 1 मंथ हमारे पास नहीं है, सिर्फ हमारे पास कितने हैं यहाँ पर? 15 डेज है, तो डिवाइडेड बाय 2। इस तरह से आपका एवरेज पीरियड आ जाएगा
12 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा आपका, कितना आएगा, 6 मंथ्स हमारे एवरेज पीरियड आ जाएगा, राइट। तो सेम आपका यही इसी तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अपनी तरफ से आप एजम्पशन ले सकते हो कि कब हमने ड्राइंग्स करी है, लेकिन आपको केस यहाँ पे देखना है कि ड्राइंग्स आपकी बिगिनिंग में करी गई है, एंड में करी गई है, या एट द मिड ऑफ एवरी मंथ आपका करा गया है, राइट। सो ये सिंपल फॉर्मूला आपको याद रखना है एवरेज पीरियड का, दैट इज टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, चाहे वो आपका 12 मंथ्स का है, चाहे वो आपका 3 मंथ्स का है। So what we notice here is if the drawings are continuously made at the beginning of every month, then average period will be 6.5 months. If it is at the end of every month, then it is 5.5, and if it is in the middle, then average period is 6 months, right? So this was case when drawings are made at the beginning, at the end, at the mid of every month. Next case is when drawings of equal amount are made in the beginning of each quarter. हर क्वार्टर के बिगनिंग में हमने अगर ड्राइंग्स करी हैं तो कितना हमारा एवरेज पीरियड होगा, फॉर्मूला विल बी द सेम, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अब आपको पता है कि एक क्वार्टर के अंदर साल में 4 क्वार्टर होते हैं हमारे, और कितने कितने मंथ्स के होते हैं हमारे, 3 मंथ्स के होते हैं। अगर आपने ड्राइंग्स करी हैं हर क्वार्टर के बिगिनिंग में आपने ड्राइंग्स करी हैं तो हमारा कितना होगा एवरेज पीरियड, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। इसका मतलब फर्स्ट ड्राइंग आपने कब करी होगी, फर्स्ट क्वार्टर आपका स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल मई जून, एक क्वार्टर हो गया हमारा, बिगिनिंग में करी है हमारी, तो कितना टाइम पीरियड बचा हमारा, सेम 12 मंथ्स हमारे बचे, ये हो गया। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग आपने कब करी होगी, लास्ट क्वार्टर आपका कौन सा होगा, जनवरी फरवरी मार्च, राइट। तो 1 जनवरी को आपने विड्रॉइंग्स करी होंगी, तो 1 जनवरी के बाद आपके कितने टाइम पीरियड, कितने मंथ्स बनते हैं, 3 मंथ्स डिवाइडेड बाय 2। तो एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर है तो एवरेज पीरियड हमारा कितना बनेगा, 7.5 मंथ्स। आप हर वैल्यू को यहाँ पे क्रैम नहीं कर सकते, क्वार्टर का, मंथ का, 3 मंथ्स का, 6 मंथ्स का। बेटर है कि आप इस फॉर्मूले के थ्रू अपना इमेजिनरी आप लेके, सपोज हमने अप्रैल 1 को ड्राइंग्स करी होंगी तो अप्रैल 1 के बाद हमारा कितना टाइम पीरियड बचता है, उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ पर अपना कैलकुलेट कर सकते हो। सेकेंड सेम हमारा केस है व्हेन ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में अगर हमारा ये आता है तो हमारा सेम होगा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग सपोज हमने कब करी होगी, एट द एंड है, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, पहला क्वार्टर हमारा कौन सा होगा, अप्रैल मई जून, राइट। तो एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, इसका मतलब एंड में करा होगा हमने, क्वार्टर के एंड में, हमारा क्वार्टर एंड कब हो रहा है, अप्रैल मई जून के लास्ट में, तो 3 महीने हमारे यहाँ से गए क्योंकि जून के लास्ट में हम कर रहे हैं, तो पिछले जो महीने हैं आपके वो कट गए, उसके आगे आपके कितने महीने बचे हैं, कितने मंथ्स बचे हैं, 9 मंथ्स, क्योंकि 12 में से 3 मंथ्स आप डिडक्ट कर दोगे तो कितने बचेंगे हमारे, 9 मंथ्स। अब सेकंड हमारा क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग आपने कब करी होगी, एट द एंड ऑफ लास्ट क्वार्टर हमारा कौन सा है, जनवरी फरवरी मार्च, तो इसका मतलब आपने 31 मार्च को अपनी ड्राइंग्स करी होंगी, तो 31 मार्च के बाद आपके कितने मंथ्स बचते हैं, साल हमारा खत्म हो गया, तो 0 मंथ्स। तो सेम इस तरह से कैलकुलेट करोगे तो आपका कितना आएगा एवरेज पीरियड, 4.5 मंथ्स, राइट। नेक्स्ट है आपका, जब ड्राइंग्स हम मिडल में करते हैं हर महीने के, तो सेम आप यहाँ पे अप्लाई करोगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको देती हूँ, अप्रैल मई जून की मैंने बात करी है, हर क्वार्टर के मिड में आपने करा है, तो इसका मतलब कब करा होगा, अप्रैल मई में आपने करा होगा, राइट। तो मई से आपके कितने महीने हो गए, मई के भी बीच में आपने 15 मई आप कह सकते हो, तो हमारे कितने मंथ्स बचेंगे, 10.5। और सेम इसी तरह से अगर लास्ट ड्राइंग हमने करी है तो 1.5 मंथ्स हमारे होंगे, तो एवरेज पीरियड हमारा कितना रहेगा यहाँ पर, 6 मंथ्स रहेगा। इसी तरह से अगर हमने हर महीने हमने करे थे तो वहाँ पर भी हमारा मिड में एवरेज पीरियड हमारा कितना बन रहा था, 6 मंथ्स बन रहा था, राइट। तो इसी तरह से 22nd इलस्ट्रेशन आप इसी तरह से करोगे, एवरेज पीरियड आप कैलकुलेट करोगे। देखो ये तो हमने एवरेज पीरियड कैलकुलेट करा है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हमें आगे फर्दर कैलकुलेट करना है। कैसे करना है, फर्स्ट केस देखो 26th इलस्ट्रेशन के अंदर आपको गिवन है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आपको गिवन है 10% की रेट से है, और केसेस हमारे क्या हैं, इफ ही विड्रू, नवदीप अगर विड्रू करता है 20,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में 20,000 विड्रॉ करता है। तो हमने करा था केस यहाँ पर, अगर द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर है तो एवरेज पीरियड हमारा कितना है, 7.5 मंथ्स। ये अप्लाई करके चलते हैं, 7.5 मंथ्स हमने यहाँ पे लिए हैं।
अमाउंट हमारा कितना है 20,000। तो पहले केस में देखिए 20,000 हर महीने अपने करे हैं, साल में कितने क्वार्टर, 4 क्वार्टर। तो अमाउंट टोटल हमारा कितना हो गया 20,000 इंटू 4 टू जा 8, 80,000। टोटल 80,000 का अमाउंट हमने पूरे साल में विड्रॉ करा है, क्योंकि साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर। अगर आपको गिवन है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है, तो इस अमाउंट को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, 12 से मल्टीप्लाई करोगे, राइट। यहाँ पे क्योंकि क्वार्टर थे तो साल में हमारे पास 4 क्वार्टर होते हैं, तो 4 से आप मल्टीप्लाई करोगे, अमाउंट आपका कितना आ जाएगा 80,000। सबसे पहले ये चीज ध्यान रखनी है। उसके बाद रेट हमें कितने गिवन है 10%, 10 डिवाइडेड बाय 100। एवरेज पीरियड हमने कितना लिया था 7.5 मंथ्स। तो 7.5 मंथ्स को कैसे लिखोगे 7.5। 7.5 को कैसे लिखते हैं हम 7.5 डिवाइडेड बाय 12। पूरे साल में हमारे कितने होते हैं 12 मंथ्स। तो इस तरह से 5,000 आपका डायरेक्ट आ जाएगा अमाउंट। दिस इज योर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। जितना अमाउंट गिवन है, अगर आपका मंथली है, अगर आपने कॉन्टिन्यूसली 3 महीने आपने कराए हैं, तो 20,000 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या है एट द एंड ऑफ, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है, तो ये है। नेक्स्ट केस है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर है, तो एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर हमारा एवरेज पीरियड कितना था 4.5। सबसे पहले 20,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 80,000। 80,000 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100. So in this way we will calculate interest on drawings, right? Further 26th and 27th illustration you will try yourself same. Next 28th illustration में थोड़ा सा आपका different है, यहाँ पे ये देखिए। See in the 27th illustration different cases are given. अभी तक जो हमने क्वेश्चंस करी थे उसमें क्या गिवन था, हमने पूरा साल ड्राइंग करी, या तो वो हर महीने करी या हमने क्वार्टरली करी। यहाँ पर केस देखो हमारा हर महीने है, 6 महीने के लिए हमारा, वहां पर 12 महीने के लिए था, यहाँ पर कितना है 6 महीने के लिए। तो किस तरह से हम एवरेज पीरियड कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला आपका बिल्कुल सेम यहाँ पर अप्लाई होगा। सपोज मैंने कहा 6 महीने यहाँ पर करी है, तो इसका मतलब अप्रैल से लेकर सितंबर तक हमने ड्रॉइंग्स करी होंगी। 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक आपके 6 महीने बनते हैं। सिर्फ ये इमेजिनरी एग्जांपल में दे रही हूँ आपको समझाने के लिए। तो बिगिनिंग में अगर हमने करा है तो अप्रैल के 1 में करा होगा, अप्रैल 1 से लेकर 30 सितंबर तक कितने मंथ्स बनते हैं। अब आपको मार्च तक नहीं लेके जाना, अब आपको सितंबर तक लेके जाना है। क्यों, क्योंकि आपने ड्राइंग्स जो करी है वो 6 मंथ्स के लिए करी है, 12 मंथ्स के लिए नहीं करी है, राइट। तो एवरेज पीरियड टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 6 मंथ्स। टाइम लेफ्ट अगर बिगिनिंग में करा है हमने, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग इसका मतलब बिगिनिंग में हमने कब करी होगी 1 सितंबर। 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक 1 महीना आपका, तो 1 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारा कितना बनेगा एवरेज पीरियड 3.5। उसी तरह से अगर एंड में करा है तो हमारा 2.5 होगा, मिड में करा है तो हमारा 3 मंथ्स होगा। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करोगे। 6,000 है तो 6,000 कितने मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए 6 6 36,000 टोटल अमाउंट विड्रॉ करा है। कितनी रेट गिवन है यहाँ पर 8% की रेट से इंटरेस्ट ऑन जो है ड्राइंग्स हमें मिलेगा, और एवरेज पीरियड कितना कैलकुलेट करा हमने 3.5 डिवाइडेड बाय 12। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करा है। फर्दर क्वेश्चंस यू विल ट्राई योरसेल्फ सेम। Don't cram the average period, just learn the formula and calculate different average period under different cases, whether it is your quarterly, whether it is your monthly, for 6 months, for 3 months, for 9 months, for 12 months. The same will be the formula, right? So don't cram the average period, just try to calculate the average period in different cases with the help of this formula. You can take imaginary months also. अगर 3 months हैं तो अप्रैल से लेकर जून तक आप ले लो, 30 जून तक, ठीक है। 9 मंथ्स है तो 1 अप्रैल से लेकर जहाँ तक आपके 9 मंथ्स बनते हैं उस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज अ शॉर्टकट मेथड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। दैट मीन्स 12 महीने के लिए अगर आपने 3-3 हज़ार रुपये निकलवाए हैं तो ये एवरेज पीरियड आप यहाँ के लेके चलोगे। इस तरह से हम calculate करेंगे interest on drawing. So this was all in this video. Thank you. Thanks a lot.